Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about Hershey-Chase experiment, that is also known as phage multiplication experiment, and that was actually the confirmatory experiment to prove that DNA as a genetic material. Before this, Griffith experiment was not confirmatory experiment, that was the random experiment. With the help of Griffith experiment, you cannot say whether the genetic material is protein or DNA, because the conversion of R-second bacteria into S-third bacteria was not clear from Griffith experiment. Later, Oswald, Avery, Colin MacLeod and McCarthy performed the biochemical characterization of the Griffith experiment in order to check the DNA as a genetic material. After that experiment, the Hershey and Chase, the two scientists, Alfred Hershey and Martha J. Chase, Alfred Hershey and Martha J. Chase, the two scientists in 1952, able to give an idea regarding the DNA as a genetic material. But the selected organisms by Hershey and Chase was the bacteriophage. Listen, the selected organisms was bacteriophage. What is bacteriophage? Bacteriophage are the virus that infect bacteria. वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफाज. अगर बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको क्या आइडिया मिलेगा. इस तरह से बैक्टीरियोफाज की बॉडी में एक हेड होता है, नेक होता है, और उसका लास्ट का पोर्शन ये टेल रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द टेल. ठीक है, ये हेड है, हेड, नेक एंड टेल. विद द हेल्प ऑफ टेल, bacteriophage able to trap the bacteria and release their genetic material in order to multiply in the body of bacteria. तो ये क्या करता है, बैक्टीरियोफाज को पकड़, ये बैक्टीरिया को पकड़ लेगा, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए. ये बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा. फिर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर क्या होगा, ढेर सारे फेज, बैक्टीरियोफेज की कॉपी बन जाएगी. ठीक है, अब इसके दो पार्ट होते हैं. बाहर जो पार्ट है ये प्रोटीन, और अंदर का जो पार्ट होता है वो डीएनए होता है. ये बातें आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से. ठीक है, अब आते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पे. लिसन, हर्शे एंड चेज ग्रो टू डिफरेंट बैक्टीरियोफाज इनटू टू डिफरेंट मीडियम. इसी बैक्टीरियोफेज को दो डिफरेंट मीडियम में ग्रो कराया. द फर्स्ट मीडियम वाज radioactive sulfur medium. The first medium was, they grew the radioactive sulfur, that is S35, and the second colony of bacteriophage grew in the radioactive phosphorus, and that is represented as P32. General phosphorus has P30, general sulfur has P32, but the radioactive sulfur has S35 and radioactive phosphorus has P32. अब जिस बैक्टीरियोफेज को S35 रेडियोएक्टिव मीडियम में ग्रो कराया, उसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो गया. मींस इसका प्रोटीन क्या हो गया, रेडियोएक्टिव. Protein get labeled by S35. रीजन क्या है, डीएनए नॉर्मल था इसका, डीएनए रीमेन नॉर्मल. रीजन क्या है कि डीएनए में कोई सल्फर नहीं होता है. डीएनए का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा. तो उसमें आपने देखा होगा कि डीएनए
has no any kinds of sulfur. So S35 never incorporated with the DNA molecules. Only the protein get incorporated, so the protein become radioactive labeled. In the second medium, bacteriophage that was grow into phosphorus, radioactive phosphorus medium, the DNA get radioactive while the protein remain normal. यानी कि प्रोटीन कैसा था, इसका नॉर्मल था और डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। इतनी बातें आप लोग लिखिए कॉपी में। इन द सेकेंड केस द प्रोटीन रिमेन नॉर्मल, प्रोटीन रिमेन नॉर्मल व्हाइल डीएनए बिकम रेडियो एक्टिव। रीजन क्या है, प्रोटीन डोंट हैव फॉस्फोरस, प्रोटीन may have sulfur but don't have any kinds of phosphorus, so the protein remain normal in the second case while the phosphorus found in a DNA, so the DNA become radioactive। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे। लिसन, उसने क्या किया, बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी को बैक्टीरिया ई कोली के साथ फ्री ग्रो कराने के लिए छोड़ दिया। बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी को बैक्टीरिया ई कोली बैक्टीरिया के साथ फ्री ग्रो कराने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। कैसे छोड़ा, लिसन, बैक्टीरियोफेज पहले इवेंट्स में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज जिसका सल्फर रेडियो एक्टिव था वो बैक्टीरिया के साथ जाके चिपक गया। ठीक है, और दूसरा वाला बैक्टीरिया जिसका फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था वो भी बैक्टीरिया के साथ जाके चिपक गया। इसका मतलब क्या हो गया, डीएनए के आगे ब्रैकेट में रेडियो एक्टिव लिखते रहे और प्रोटीन के आगे ब्रैकेट में रेडियो एक्टिव लिखते रहे। ठीक है, दिस इज नोन एज द इन्फेक्शन व्हेन द बैक्टीरियोफेज अटैच ओवर द बैक्टीरियल बॉडी, then this is known as the attachment, and when bacteriophage release their genetic material to the bacterial body, there is the infection। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें रिलीज कर देगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियोफेज में रिलीज कर देगा। इट मींस द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन इज ओवर। इन्फेक्शन। सेकेंड केस में क्या किया, सेकेंड केस में बैक्टीरियोफेज को उसकी बॉडी से डी अटैच्ड कर दिया, बैक्टीरियोफेज को उसकी बॉडी से डी अटैच कर दिया। कैसे, विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंडर एक मशीन होता है जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज जो चिपका हुआ बैक्टीरिया से वो अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगले स्टेज में ये बैक्टीरिया है, ये सेकेंड केस वाला बैक्टीरिया है, इसको क्या करवाया, ब्लेंडिंग करवाया। ब्लेंडिंग इसने हर चीज ने ब्लेंडिंग करवा दी और बैक्टीरियोफेज अलग हो गया। अपना जेनेटिक मटेरियल तो कंट्रीब्यूट किया ही था लेकिन अब ये अलग होगा, विदाउट जेनेटिक मटेरियल होगा। इस केस में भी बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, मींस ब्लेंडिंग इज द फिनोमिनन टू डी अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। अब ये एलोन बैक्टीरिया जिसका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल है, याद रखो, क्योंकि रेडियो एक्टिव इसका प्रोटीन है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव, और ये क्या है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये रेडियो एक्टिव है, यानी इसका प्रोटीन क्या है, ये नॉर्मल। ये याद रखना, ये नॉर्मल डीएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस टू डी अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम द बैक्टीरिया। थर्ड स्टेज में आते हैं हम लोग। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में इसको, ये जिस सिस्टम में है भाई, किसी टेस्ट ट्यूब में होगा, कल्चर मीडियम में होगा, जहां भी होगा, उसको तेजी से सेंट्रीफ्यूगल मशीन से घुमाया ताकि हैवियर पार्टिकल्स सेट डाउन हो जाए और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहे। ठीक है, हल्का जो पार्ट होता है वो ऊपर रहता है और जो हैवियर पार्ट होता है वो बॉटम में बैठ जाता है। किस प्रोसेस में, सेंट्रीफ्यूगेशन में। सो इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया और टेस्ट ट्यूब में मटेरियल ऑब्टेन किया, और इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया टेस्ट ट्यूब में। यानी कि क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, यानी कि जिसका जेनेटिक मटेरियल, जिस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया और इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने पे दो अलग अलग लेयर ऑब्टेन होते हैं। आउटर लेयर इज नोन एज सेडिमेंट, द अपर लेयर इज सेडिमेंट,
and the lower layer is supernatant. The lower or bottom layer is supernatant. Similarly, the sediment and the bottom layer is supernatant bottom layer. अब अपने हिसाब से बताओ बैक्टीरिया की बॉडी हैवी होती है कि बैक्टीरियोफेज की? बैक्टीरियोफेज की बॉडी लाइटर होती है, हल्की होती है, क्योंकि वो वायरस है, और बैक्टीरिया की बॉडी क्या है? वो हैवी होती है। ठीक है, लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। So the supernatant has the bacterial cell and sediment has the viral cell. Similarly, the bacterial cell and viral cell. Viral or viral particles. We can say that the viral particles. Keep in mind the virus particles. It was found that in first case there was no radioactive element extracted in the bacterial part. It means supernatant. Supernatant has no radioactive elements in bacterial cell. No radioactive elements in bacterial cell. It means no radioactive elements in the supernatant. While in the second part there was radioactive substances obtained in supernatant. In supernatant the radioactive substances obtained. ठीक है, सेकेंड पार्ट में बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को ऑब्टेन किया गया। रीजन क्या था कि बैक्टीरियोफेज को इस प्रोसेस में शुरू से ही ग्रो कराया गया था रेडियो एक्टिव मीडियम में। अब कौन से मीडियम में? फास्फोरस में। यानी इसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी रेडियो एक्टिव था जो बैक्टीरिया की बॉडी में रिलीज कर दिया, और बैक्टीरिया की बॉडी में जब रिलीज कर दिया तो इससे हर से चीज को आइडिया मिला कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो पेरेंट्स अपना जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में रिलीज करता है। अगर इसका प्रोटीन जेनेटिक इसका जो है इसमें प्रोटीन अगर रोल प्ले करता जेनेटिक मटेरियल कैरी करने में, तो इसमें बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिलते हैं, यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिलता। लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं मिला, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। तो इससे क्या क्लू निकला? दैट gave an idea that protein doesn't play any important role in hereditary process, in hereditary phenomenon. That is only the DNA play important role in the process of heredity. ठीक है, तो ये कॉपी में आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द confirmatory experiment regarding the Hershey-Chase experiment. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फेज मल्टीप्लीकेशन और फेज that is bacteriophage multiplication or transduction. Thank you.